Okay, good morning students. Today we will start. Today we will continue our chapter A Letter to God. Yesterday we have completed up to this oral comprehension. Further we will start now. Okay, so we will continue the same chapter. We will start here. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the wall, there was a single hope from the God. Okay, so in this line, but in the heart of all pertain to every person of the family, Lencho, his wife, and two sons. All they were the people who were residing in that solitary, mean alone, enclosed house, in the middle of the valley. So we in the starting we have come to know that they are living in the valley on a as of a house. So एक वैली में वो एक पहाड़ी के ऊपर रहते थे. स्टार्टिंग में हमें पता लगा था उनका इकलौता घर था. ओके, तो कौन कौन थे उसमें? लेंचो था, उसकी वाइफ थी और दो बच्चे थे, दोनों सन थे. ओके, तो we came to know now due to the hailstorm has destroyed his field. Now the hailstorm has ruined his crop. Now there is no crop. Now they are expecting help. Help is only one thing, one person, one individual, that is God. Okay, that means Almighty. God can only help because there is no other person in their neighborhood. Okay, तो कोई है नहीं, कौन हेल्प करेगा? सिर्फ God can help. तो उनकी भगवान ही मदद कर सकता है. Don't be so upset. Now he is counseling his family, consoling his family. Consoling मतलब ढाढ़स बंधा रहा है उस फैमिली को. क्या बोला? Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, कि इतना अपसेट मत हो, इतने निराश मत हो. ऐसा लग रहा है, even though this seems, ऐसा लग रहा है, seem मतलब दिखाई देना, ऐसा प्रतीत होना. ओके, ऐसा प्रतीत हो रहा है, like a total loss, यह पूरा लॉस है. रिमेंबर, लेकिन याद रखो, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है. No one dies of hunger. This statement is given by Lencho. Okay, now who is the speaker? Lencho is the speaker in this line. Okay, mean who give this statement? Okay, don't be so upset. So this statement is given by Lencho to his family. To his family. वो अपनी फैमिली को कंसोल करते हुए बोल रहे हैं. Okay, तो माइंड इट. Okay, that's what they say. इसीलिए ये कहा जाता है. That's what they mean people. They represent to the people. लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? No one dies of hunger, कि कोई भूख से नहीं मरता है. तो they stand for people here. दुनिया में लोग बोलते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है. तो they stand for people. Although the night, all through the night, Lencho thought only of his one hope. तो सारी रात, all through मतलब बैठ के उसने सारी रात काटी है. तो सारी रात Lencho thought, उसने सोचा of his one hope. The single hope is from God. The help of God, कि भगवान से कैसे मदद ले. Whose eyes, as he has been instructed, see everything, कि उसकी जो आंखें हैं, as he has been instructed, उसको दिखाई देता है, उसको सब समझ में आता है. See everything, सब देखती है. मतलब भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है, भगवान सब कुछ देखता है. Even what, फिर भी is deep in one conscience. Okay, किसी के दिल में क्या छुपा है वो भी उसको पता होता है. Lencho was an ox. Lencho was an ox. Okay, Lencho was an ox. Lencho एक बैल नहीं था. Lencho एक बैल की तरह था. Mean he is a very hard working guy. Hard worker. Okay, because ox क्या काम करते हैं? Ox generally work in field. Lencho work like an ox. Okay, so it is metaphor. Okay, already we have discussed in figure of speech. Figure of speech मैंने आपके पढ़ाए थे, तो उसमें आपने शायद देखा भी होगा कि डायरेक्ट कंपैरिजन है. कंपैरिजन किससे किया इसका? ओके, तो मेटाफोर है. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल. तो वो पशुओं की तरह काम करता था. मीन ही इज वेरी हार्ड वर्किंग इन द फील्ड अपने खेत में. बट स्टिल, फिर भी he knew how to write. लेकिन फिर भी उसको पता था. मीन ये सार्केस्टिक कमेंट है कि वो अनपढ़ नहीं था, वो खेती करता था लेकिन वो पढ़ना लिखना जानता था. He knew how to write. Mean he was educated. literate, educated, or
लिटरेट, लिटरेट मीन पढ़ा लिखा, वो पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे मीन आने वाले संडे एट डे ब्रेक, दिन के समय जब वो रेस्ट करता था, he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, which he himself would carry to town, जिसे वो खुद टाउन लेके गया, ओके सिटी में लेके गया, नियर बाय सिटी मीन वेयर पोस्ट ऑफिस वाज लोकेटेड, जहाँ पोस्ट ऑफिस था, एंड प्लेस इन द मेल मीन पोस्ट ऑफिस में जाके मेल में डाल दिया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था बस एक चिट्ठी थी भगवान के नाम, लेटर टू गॉड, उसने एक लेटर लिखा था जो गॉड के लिए था। गॉड नाउ व्हाट ही हैज रोट, गॉड ही रोट, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखा रहेंगे। I need 100 pesos. Peso is the currency. Okay? कि मुझे 100 pesos की जरूरत है in order to sow. Sow mean दोबारा से क्रॉप को बोना. Okay? क्रॉप को दोबारा से लगाना. My field again कि मेरे फील्ड को दोबारा से फसल उगाने के लिए, and to live until crop come, तो जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ओके, एंड कंटिन्यू मीन बिकॉज द हेलस्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ओके, बिकॉज द हेलस्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ओके, इसमें डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन क्या शो करती है, ओके, द होल सिचुएशन जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ी है, हेलस्टॉर्म, हाउ द हेलस्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड, कि हेलस्टॉर्म ने उनका खेत, तूफान ने इनका खेत कैसे बर्बाद किया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, यहाँ पे डॉटेड लाइन है दैट इज कंटिन्यू कि हेलस्टॉर्म ने ऑलरेडी इनका खेत उजाड़ दिया है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पे उसने एड्रेस वाले पेज पे क्या लिखा, टू गॉड, ओके, एनवलप में जो सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस होता है तो रिसीवर कौन रिसीव करेगा, टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside, and अंदर उसके लेटर रखा, mean he has taken an envelope, on the envelope he has mentioned the address of the god, then he put the letter inside and still troubled, फिर भी वो सोच रहा था, went to the town, ओके, और वो टाउन चला गया, मीन ये लेटर को पोस्ट करने के लिए, एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन इट, ओके, उसने उस पे स्टैम्प लगाया, किस पे, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है जो पोस्ट ऑफिस में, उसने अपना लेटर डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉय, सॉरी, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, मीन उनका ही एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में जो हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, मीन पोस्टमास्टर, लाफिंग हार्टली, वो जोर जोर से हंस रहा था दिल से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है कि लेटर किसी ने भगवान के नाम, तो जनरली ये इंसिडेंट कौन कर सकता है, ऐसा एक्ट कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन वो तो एक फार्मर है, मैच्योर है, उसने भी लिखा है, मीन कितना उसका डीप फेथ है, ओके, मीन ही इज हैविंग ए डीप फेथ इन गॉड, ही इज राइटिंग टू गॉड, ओके, मीन ही इज इनोसेंट आल्सो, कितना वो नासमझ और इनोसेंट है, ओके, क्योंकि उसने भगवान को लिखा है, तो ही इज लाफिंग, वो हंसता है कि कितना बेवकूफ आदमी, कितना इनोसेंट आदमी है जो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, भगवान। So showed him the letter to God, letter जैसे उसने पोस्टमास्टर को दिखाया। Now what is the reaction of the postmaster? Never in his career, पोस्टमास्टर ने अपने पूरे कैरियर में as a postman, एक पोस्टमैन के कैरियर में had he known that address, उसने ये एड्रेस कभी नहीं जाना, ढूंढा, या उसने कभी पता नहीं लगाया, मीन टू से ऐसा एड्रेस, ऐसी चिट्ठी कभी आई नहीं उसके पास कि वो भगवान के पास किसी ने लेटर लिखा हो, ऐसी सिचुएशन उसके पास आई नहीं। तो इट वाज फर्स्ट इंसिडेंट इन हिज लाइफ, द पोस्टमास्टर इफेक्ट, एंड पोस्टमास्टर इफेक्ट एक मोटा सा आदमी था, एमिएबल मीन शांति प्रिय, जो लोगों का भला सोचने वाला, शांति प्रिय। पोस्टमास्टर एक शांति प्रिय फेलो मीन इंडिविजुअल था, फेलो मीन इंडिविजुअल, कि पोस्टमास्टर
मास्टर एक बहुत ही नेक और शांति प्रिय इंडिविजुअल था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से, ब्रोक आउट मतलब जोर जोर से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफ्टर मीन जोर जोर से हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो एकदम सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और लेटर को टैप करने लग गया। ओके, दिस लेटर, ओके, टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, कमांडेड, और उसने इंस्ट्रक्शन दिया अपने एम्प्लॉय को। व्हाट फेथ, ओके, कि कितना विश्वास है, व्हाट फेथ, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कि व्हाट ए फेथ, भगवान में इसका कितना विश्वास है। आई विश, कि मैं सोचता हूं, मैं इच्छा करता हूं या मानता हूं कि आई हैड द फेथ ऑफ मैन, कि मुझे इस आदमी का फेथ को बरकरार रखना चाहिए। हैड मीन रिटेन हियर, ओके, आई शुड रिटेन, मुझे इसका विश्वास बनाए रखना चाहिए। Who wrote this letter? Okay, जिसने ये लेटर लिखा है। Who wrote this letter? So this letter किसने लिखा है? Lencho has wrote. So जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है, मुझे इसका विश्वास बनाए रखना चाहिए। Starting up a correspondence with God, जिसने भगवान के साथ एक correspondence में पत्राचार, okay, लेटर लिखना मीन पत्राचार स्टार्ट किया है। So in order not to shake the राइट ऑफ फेथ इन गॉड, कि भगवान का विश्वास ना डगमगा जाए। शेक मतलब डगमगाना, ओके, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, कि उसका भगवान से विश्वास ना डगमगा जाए। फेथ मीन विश्वास इन गॉड। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। ओके, आंसर द लेटर, की मैं इस लेटर का जवाब भेजता हूं। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे इसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट, कि पक्का था, दैट आंसर it, to answer it, इसका जवाब देना, he needed something more than goodwill, कि वो गुडविल के अलावा उसको कुछ और चीज की जरूरत है। What he demanded 100 पैसों, उसको सिर्फ डाटा से नहीं बंधाना, उसको गुडविल ही नहीं चाहिए। But he need something else, mean he need 100 पैसों। Why he need 100 पैसों? To sow his crop again and to look after his family, to feed his family, because hailstorm has destroyed his। फिर उसको 100 पैसों इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने खेत को दोबारा बो सके और अपनी फैमिली को खाना खिला सके। कब तक? जब तक दोबारा फसल नहीं आई। सो दैट ही कैन शो हिज फील्ड अगेन और ही कैन फीड हिज फैमिली टिल ही विल नॉट गेट द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक उसको दूसरी क्रॉप नहीं मिल जाती है तब तक। मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इसको पेपर पे लिखी हुई गुडविल के अलावा और कुछ भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन ही वाज स्टेटिक मीन टू से वो अपना जो डिटरमाइंड रहा, मतलब कि अपना जो उसने आइडिया था, डिसीजन लिया था कि मुझे इसको कुछ करना चाहिए, तो अपने रिजोल्यूशन में उसने जो निश्चय किया था, ओके, उस निश्चय पे वो अडिग रहा। ओके, स्टेटिक मीन अडिग रहा। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय से मनी के लिए डिमांड किया कि चैरिटी करो। ओके, मीन चैरिटी और डोनेट, किसी को फोर्स तो आप कर नहीं सकते, ओके, किसी की हेल्प करने के लिए तो डोनेट, ठीक है। इसने अपने एम्प्लॉय से डोनेट करने के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। पार्ट मीन सम पार्ट, कुछ हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और अपने दोस्तों से वर ऑब्लाइज, उसने रिक्वेस्ट किया टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ओके, मीन डोनेशन। उसने अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट किया कि वो चैरिटी के नाम पे इस इंडिविजुअल की हेल्प करें। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, लेकिन इतने लोग, इन 100 पैसों वाज ए बिग अमाउंट, 100 पैसों वाज ए बिग अमाउंट दैट टाइम, सो दे कुड नॉट कलेक्ट। जितने लोग ये चैरिटी करके भी, अपनी सैलरी दे के भी, they could not collect the 100 pesos because it was a budget for 1 year, because he will get the next crop till the time he need money. So he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन वो कितना भेज पाया? हाफ से थोड़ा ज्यादा। And he put the money in an envelope, उसने लिफाफे में पैसा डाला। Address to Lencho, Lencho को एड्रेस लिख दिया, मीन टू से एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के घर भेज दिया। एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ एक लेटर भी लिखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उस लेटर पे एक ही वर्ड लिखा था, सिंगल वर्ड, एज सिग्नेचर कोड। इसमें क्या लिखा था?
गोड। ओके, उसने आंसर में एक लेटर लिखा, लेटर पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गोड, मीन टू से ताकि उसका फेथ रिटेन। व्हाई ही हैज रोट दिस लेटर एंड साइन एज गोड, so that he can retain the faith of individual who have expected from gold 100 peso. Why? To feed his family. Okay, to show his crop again. So the postmaster want to retain the faith, so he has written the letter. Okay, let's discuss oral comprehension. Who and what did Lencho have faith in? Why did he? Why did he? Sorry. अच्छा, what did he do? Okay, उसने क्या किया? Okay, what did he do? तो who and what did Lencho have faith in? Lencho have faith in God, and what did he do? He wrote a letter to God. He wrote a letter to God. Then why he has written a letter to God? To demand 100 pesos to sow his crop again and to feed his family. Who read the letter? The postmaster read the letter. What did the postmaster do then? Postmaster passed a resolution to help and retain the faith of Lencho. So he requested from his employees to donate something. He also donated some part of his salary, and he has requested from his friend to make some charity to help the poor farmer, so that he can retain his faith in gold. The following Sunday, Lencho came a bit earlier. अगले संडे थोड़ा सा जल्दी आ गया than usual. Okay, आमतौर पे जिस समय से आता था उससे to ask, ये पता करने के लिए if there was a letter from him, कि उसके लिए for him, sorry, उसके लिए कोई लेटर है. It was the postman himself, ये postman खुद ही था. Who handed the letter to him, जिसने इसको लेटर हैंड ओवर किया. कौन सा लेटर? जो बोर्ड से आया था. Okay, while the postmaster, जबकि postmaster experiencing the contentment. Okay, experiencing मतलब वो देखना चाहता था. Okay, experience करना चाहता था. Contentment of mean contentment. Okay, mean उसका जो satisfaction था. How he feel after getting, कि उसका मन की जो दशा थी उसको वो फील करना चाहता था कि वो कैसा उसको लगता है. वो फिर मैन उस आदमी की मनोदशा को वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि वो लेटर मिलेगा तो उसको कैसा फील होगा. एंड हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था. लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देखता है कि वो लेंचो को देखना चाहता है कि आफ्टर गेटिंग द लेटर हाउ ही फील, उसको कैसा महसूस होगा. ओके, तो वो उसको कैसा महसूस होगा वो देखने के लिए उसने पोस्ट ऑफिस में रहा वो, और पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंड ओवर किया. बट हाउ लेंचो हैज रिएक्टिंग नाउ द आयरनिकल सिचुएशन में. आयरनी क्या होती है? जो एक्सपेक्ट की हो बिल्कुल उसका कॉन्ट्रेरी हो, जो हमने सोचा हो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाए, जिसको बोलते हैं आयरनी, आयरनिकल सिचुएशन. Okay, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lencho को भी थोड़ा सा बेचंबा नहीं हुआ पैसा देखने, सरप्राइज नहीं हुआ, because he was having deep faith in God. वो तो इतना श्योर था भगवान भेजेगा ही, तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. Such was his confidence, इसका इतना कॉन्फिडेंस था भगवान की भेजने वाला है. But he became angry, लेकिन वो गुस्से में आ गया. When he counted the money, जैसे उसने पैसा काउंट किया. God could not have made mistake, कि God गलती नहीं कर सकता. Nor would he have denied Lencho, ना ही उसने लेंचो को मना किया है. What he had requested, जो उसने रिक्वेस्ट की कि गॉड गलती तो कर नहीं सकता, ना ही गॉड ने मना किया है. उसे भेजना था तो पूरा ही भेजना था, आधा क्यों भेजता वो, तो गॉड गलती नहीं करता था. What is the आगे पैरे में immediately Lencho went up to the window. Immediately Lencho विंडो पे जाता है. ओके, विंडो कौन सी? पोस्ट ऑफिस की. वहां से वो विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहां से वो पेपर और इंक लेता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस के बाद पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहां लोग चिट्ठियां लिखते हैं और पेस्ट करते हैं. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखा विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकलिंग मतलब अपनी भवें चढ़ाते हुए, बिकॉज वो टेंस था थोड़ा, तो बार बार उसकी चेहरे के जो जेस्चर थे, रिंकलिंग उसकी भवें थी. ओके, आईब्रो थी, बार बार
ऊपर नीचे हो रही थी, caused by effort, वो जो एफर्ट लगा रहा था, why to put in motion, why he is putting effort to make to express his idea, because वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो एफर्ट लगा रहा था। when he finished, जैसे इसने अपना लेटर पूरा किया, he finished मतलब when he wrote the letter, he went to the window, विंडो के पास गया to buy a stamp, एक स्टैम्प लेने के लिए, which he liked मतलब मुंह से धूप से चिपकाना, and then affix, और फिर उसको चिपका देना, फिक्स मतलब फिक्स, ओके, लाइक मतलब पेस्ट, ओके, उसको पेस्ट करना धूप से चिपका के। उसने एनवेलप को चिपकाया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब ऐसे मारना उसके ऊपर, ओके, ब्लो मतलब एक फिस्ट मतलब एक मुक्का मार के उसको जोर से लेटर को चिपका दिया, फिस्ट मतलब कि थोड़ा पुश करना, ओके, जब के साथ हिट करना, ओके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बुक, जैसे वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, लेटर में क्या लिखा, गॉड, लेटर में व्हाट इज द मैसेज इन द लेटर, व्हाट ही हैज रोट, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो मैंने ये पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे पहुंचे हैं। आई हैव डिमांडेड 100 पेसो बट आई गॉट ओनली 70 पेसो, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दो, सेंड मी द रेस्ट, सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड it from mail, but okay, very important line, okay, what is the ironical situation, okay, irony in this chapter, okay, but don't send, but मत भेजना through the mail, mail के through, okay, mail के through आप मत भेजना, why he has denied, because the post office employee, पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉई है आर एज बंच ऑफ क्रूक्स, कि वो धूर्त हैं, चोर हैं, ठग हैं, कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स का मतलब होता है क्रूअल और ठग, ओके, वो लोग क्रूअल हैं, ओके, ठग हैं, मतलब कि उन लोगों ने पैसे चुरा लिए, लेंचो, उसने अपना नाम लिख दिया, कि ओके, लर्न दिस टर्म, ओके, बिकॉज पोस्ट ऑफिस स्टाफ आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच का मतलब होता है ग्रुप है, कितने, जो ठगों का ग्रुप है, ओके, क्रूक्स लोगों का ग्रुप है, ओके, क्रूअल लोगों का ग्रुप है, मतलब पोस्टमैन की जो स्टाफ है। तो हाउ इट इज आयरनिकल सिचुएशन, बिकॉज दे पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड, दे हैव शोन द ह्यूमैनिटी, मानवता दिखाई थी उन्होंने अपनी सैलरी से चैरिटी की थी, डोनेट किया था, दोस्तों से भी उन्होंने इकट्ठा किया ताकि एक इनोसेंट पीपल की हेल्प कर सके। लेकिन इनोसेंट पीपल को क्या लगता है इधर, ओके, आयरनी क्या है कि उसने उनको धन्यवाद तो नहीं दिया, he was having deep faith in God and what he has thought, he has thought that money has been sent by the God only, but he didn't get the full amount, he hardly get 70 pesos, so he was very much annoyed. And what he has said that don't send it by mail, because postmen या post office staff, they are post office employees, they are bunch of crooks, mean this is the ironical, mean people have contributed for good but they were blamed, okay, so this is the ironical situation, okay, so I hope you understood. Let's do the comprehension. Was Lencho surprised to find a letter from him with money in it? Okay, no, he was not surprised because he was expecting, he was very much confident that he will get the money from God. What made him angry? Because he did not get the full amount, he hardly received 70 pesos. Okay, so he became angry because he has demanded 100 peso and he had received only 70 peso, so he became angry. Okay, so this is the end of the chapter. Kindly go through the chapter, read the text,
and try to solve the exercise by your own. Okay, thanks a lot.